Are you done? Okay, listen, everyone. In the first case, they ask you to determine the empirical formula. Empirical formula, the formula which shows the simplest ratio. उसी को कहते हैं ना empirical. So in order to determine empirical formula, first I have to determine the molecular. 1, 2, 3, 4 carbon I can see. 1, 2, 2, 1, 6 hydrogen I can see. And how many oxygen? 4. This is not empirical, this is molecular. Just add them together and put them together. Now divide by the smallest value. इनमें से smallest value 2 से divide कर लेते हैं. तो क्या बन जाएगा? Name the gas when butanic acid reacts with a sodium metal. Any acid when reacts with any metal. What the gas that is given off? Hydrogen gas, na? Okay, now coming to the actual question, which I wanted to give you. ये just warm up मैंने दो दिए थे. Actual पे आते हैं. कहते हैं जी butane 1,4-diol can be represented like this. Butanoic acid can be represented like this. Butane 1,4-diol reacts with butane-dioic acid to form a polymer. What is the word? Polymer. Draw 2 repeat units of polymer formed from the reaction of butane 1,4-diol with the butane-dioic acid. Show all the atoms and all the bonds in the ester linkage. Right? Now, what we learned, or what one of you must have drawn, वो क्या है? On your behalf, if I'm a student, and what I'm gonna do, what I recall in my memory, the teacher told me that when they undergo polymerization, carboxylic acid अपना OH lose कर देते हैं. They have to lose their OH. And alcohol or amines, they lose their what? This is what teacher told me. And I have to put them together now in alternate positions. This one, this one, this one, this one. Right? Okay, starting with this. So if I don't put, this is the dibutanoic acid. When it goes in the polymer, it loses its OH from both sides. Now coming to the next. What next? Now after this, दूसरा monomer आएगा. वो अपना क्या lose कर चुका है? H. So you have to write O, then box with a gray, and then O. Is it? What he says, now clearly mentioned. बच्चे यहाँ तक करके छोड़ दे. वो क्या कह रहा है? कितने repeat units होने चाहिए? 2 repeat units. This is not enough. That's a common mistake. You have to, उसने देखें बच्चे मिस कर जाते हैं इसलिए वो बोल्ड कर देता है टाइम्स ताकि बच्चे मिस ना करें, फिर भी मिस कर देते हैं. There must be 2 repeat units. ये तो एक थी. देखिए अब इसी के साथ if I draw it another में क्या होगा? इसी चीज को दोबारा बनाना है तो पहले मैं ये बना देता हूँ इस साइड पे. अब इसकी बारी है ना इस वाले पार्ट की, अल्कोहल की. ओके, दिस इज अल्कोहल. और फिर आगे कौन होगा? C डबल बॉन्ड O दिस, C डबल बॉन्ड O दिस. यू गॉट इट नाउ? राइट? अब देखते हैं उसने क्या कहा है. लेट्स सी. अब ये देखिए, उसने कहा इसके 3 मार्क्स थे. अब देखिए हमने भी यही किया. ये यहां से यहां तक एक रिपीट यूनिट हो गया, यहां से यहां तक दूसरा रिपीट यूनिट हो गया. कहता है मार्क 1, एनी करेक्ट फुली डिस्प्लेड एस्टर लिंकेज बिटवीन 2 ब्लॉक्स. कहता है जी अगर बच्चा ये एस्टर लिंकेज दिखाने की पोजीशन में था तो मार्क 1 उसको मिल गया. 3 fully displayed interlock ester linkage with the correct orientation. अब जो हमने पहले बनाया था अगर हम उसको देखें उसमें 3 ester linkages नहीं थी. अगर हम इसको इधर छोड़ देते, लेट्स से हमने इतना बनाया था ना पहले, अगर हम इधर छोड़ देते तो हाउ मेनी ester linkages we were showing? ये होती है ना ester linkage. I hope you understand. This is the ester linkage. So how many ester linkages we were showing? Only. वो मार्क भी गया, राइट?
तीसरा, fully correct diagram showing two complete repeat units of polyester including continuation of bonds. अब देखिए, look at that. क्या हमने continuation of bonds दिखाया है? Polymer में this is very very important to show the continuation of bonds, जो कि हम usually यहाँ bracket लगा के भी दिखा देते हैं, but even you don't show the bracket, ये continuation of bond दिखाएं. ये वो एरिया होता है बच्चे जहां बच्चे मार्क्स लूज कर जाते हैं. They know how to make the polymers, but still in out of 3 they hardly score 1. ठीक है, तो 80 में से 2-3 मार्क्स इधर चले जाते हैं, राइट. सो आई होप यू गॉट इट कि आपने कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन इसको कहते हैं. मैं जब वो कहेगा 2 रिपीट यूनिट्स, तो आपने 2 रिपीट यूनिट्स ही दिखाने हैं. उसमें एस्टर लिंकेजेस या इमाइड लिंकेज अगर होगा, दूसरा अगर नायलॉन वगैरह होता है, तो कितनी दफा दिखानी है, क्योंकि एफर्ट तो कुछ भी नहीं है ना. एक अगर आपको बनाना आ गया है, यू नो द कॉन्सेप्ट, क्या यार इसका OH उतारना है, इसका H उतारना है, उनको जोड़ते जाना है, इतना सा तो काम है. बट कितनी दफा करना है, कितने एस्टर लिंकेजेस होनी चाहिए, अब ये बात आपको क्लियर होगी. आई वुड सजेस्ट इवन अगर वो ना भी कहे 2 रिपीट यूनिट्स, ना भी कहे, तो आप टू बी ऑन सेफ साइड हमेशा क्या करें, 2 रिपीट यूनिट्स, ताकि रिक्वायर्ड लिंकेजेस भी पूरी हो जाए और वो भी पूरा हो. इज इट क्लियर नाउ? ओके, देखिए जरा. राइट, आई हैव एनी क्वेश्चन? नाउ यू नो. ओके, सो ये मैंने क्या कहा, शुरू से मैंने आपको कहा कि वो पॉइंट्स जहां 65 से 80 के बीच में डिफरेंस आता है, ये वो पॉइंट्स है जी. Doesn't make difference. Doesn't make difference, right? But easier to draw when you draw with the carboxylic acid. Okay, but absolutely no difference. That's a good question. कि ester linkage ऐसे देखोगे तो C double bond O is the ester linkage. ऐसे देखोगे तो O C double bond O is also ester linkage. So it doesn't make difference को उल्टी है या सीधी है. Okay, C double bond O is the ester linkage. All right, next. Here you go. Give it a shot. Carboxylic acid can be converted into esters. Name the ester formed. या चले हम पॉइंट सीधा इसी पे आ जाते हैं. Let's come to the point, क्योंकि सही नजर भी नहीं आ रहा. ये वाला जो है, ये वाला एक दिया हुआ है, सर्कल 1 रिपीट यूनिट ऑफ दिस पॉलीमर, और साथ कह रहा है ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोमर्स which make up PAT, draw the functional group using the displayed formula. Right? सिर्फ इतना पार्ट कर दीजिए मुझे. ये PET, I hope you can see that. मैं उससे बना देता हूँ मार्कर से. ये देखिए, वो कह रहा है ये एक ये है, आप अपने पास इसको बना लीजिए. अब यू मस्ट हैव नोटिस कि मैंने बस क्वेश्चन को रिवर्स कर दिया. पहले मोनोमर से पॉलीमर बनाना था, पॉलीमर से वापस मोनोमर बनाना. राइट, सो ये 2 क्वेश्चन आते हैं इसके. ओके, C डबल बॉन्ड O, इसका डॉट से बॉक्स है, फिर आगे O C डबल बॉन्ड O, फिर डॉट में C डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर बॉक्स, फिर ये है बच्चों. राइट, इसको बनाना है. अपने पास C डबल बॉन्ड O है, फिर ये O है, फिर C डबल बॉन्ड O बॉक्स, ये बॉक्स है, और फिर O बॉक्स. पहले इसको बनाया बस. Circle 1 repeat unit of this polymer and draw the structure of monomer which make up PET. Draw the functional group using displayed formulas.
Okay, if you look at this, draw the circle one repeat unit of this polymer. Where should I put the circle? Is it here? Is it right? कहते हैं draw the structure of the monomer which make up this PET. What is the structure of the monomer? Two monomers? Which one? Okay, I have to take this out. C double bond O, C double bond O. And what we have to give it back? What we have to give it? Carboxylic acid lose their what? A while ago we learned. जब polymer बना रहे थे तो अपना क्या lose करके आए थे? OH. So let's give them back. यही है ना? What about the other? Other क्या है? दोनों ऑक्स यस उसने अपना क्या लूज किया था हाइड्रोजन सो लेट्स गिव देम बैक इसको H दे देते हैं इसको H is it so okay now जी बच्चों देखिए जरा रिपीट यूनिट सर्कल वो तो मैंने आपको वहां दिखा दी कैसे सर्कल करनी है display diol on the correct box unshaded display dioic on the correct box shaded दोनों किए ना आपने और फिर तब जाके मिलेगा नीचे पूछा था पीईटी व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर तो पीईटी व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर दो टाइप ऑफ पॉलीमर होता है ना एडिशन एंड कंडेंसेशन तो ये कौन सा है कंडेंसेशन राइट सो दिस इज हाउ यू एक्सट्रैक्ट द मोनोमर आउट ऑफ द पॉलीमर ओके ये मोनोमर को आप पॉलीमर से कैसे निकालते हैं दिस व्हाट वी हैव सीन ओके अब बच्चों इसमें जरा देखते हैं कि जिसने ये पेपर चेक किया उसने क्या कहा बच्चों के बारे में और फिर आप अपने साथ इसको रिलेट करें कि आपने क्या मिस्टेक की राइट कमिंग बैक टू द D1 D1 रीड करूं candidates who choose to circle a repeat unit starting at starting one of the ends of the given structure tended to be more successful than those who circled a unit in the middle. Some candidates simply circled the ester linkage. I hope you understand what he is trying to say. उसने कहा जी जो बच्चा तो इधर देखो जिसने तो ये किया ना जैसे हमने किया है हमने रिपीट यूनिट के लिए सेंटर नहीं पकड़ा क्या पकड़ा है एक कॉर्नर पकड़ा है कि भाई मैंने इधर से देखा कि अच्छा ये एक मोनोमर है दिस वन विद द शेडेड बॉक्स ये दूसरा मोनोमर है विद अनशेडेड बॉक्स इसमें COCO है इसमें O है और फिर आगे COCO आ गया तो मैंने यार हो उसने कहा उन बच्चों ने सही दे वर सक्सेसफुल सो क्या पॉइंट हो गया कि जब भी आप करें हमेशा मोनोमर ढूंढने के लिए तो आपने सेंटर से नहीं पकड़ना किधर से पकड़ना है एक कोने से ओके और वहां से रिपीट करके जाना है दूसरा पॉइंट जो उन्होंने दिया वो क्या था देखिए जरा वो कह रहे थे कुछ बच्चों ने सिर्फ लिंकेज को कर दिया वो भी गलत था उन्होंने सिर्फ क्या कर दिया एस्टर लिंकेज को राइट यानी बच्चों के कॉन्सेप्ट ऐसे थे कि उन्होंने ये किया कि सिर्फ इसको करके ना सर्कल ये और बोल दिया कि ये कौन सी है ये रिपीट यूनिट है ओके जबकि ये क्या है व्हाट इज दिस अगर वो कहता लिंकेज को सर्कल करो तो फिर ये आंसर है ओके कह रहा a wide range of responses was seen here. Many candidates did not appreciate that the monomers do not have the continuation of bonds and discrete molecules. क्या मतलब है इसका ये बात आप समझ रहे होंगे उसने कहा है जी कि बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की यहाँ
कि इनको इनको आगे यूं बॉन्ड्स दिखा दिए, जो कि ये नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि मोनोमर्स आर नॉट द पॉलीमर, दे आर द डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। वो इनके आगे ये लाइंस नहीं लगा सकते। ठीक है, कुछ बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि यू डू नॉट हैव टू शो द लाइंस, राइट? तो आपने भी शायद इस तरह की चीज कभी एक चीज और उसने ये कही। दूसरा, other frequent seen errors including connecting the OH bonds to the box via the hydrogen atoms, thus creating a divalent hydrogen atoms, or transposing directly drawn groups in the to the wrong box, right? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कुछ बच्चों ने यूं कर दिया, ये भी गलत है। ये देखो, ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है, ये भी गलत है। क्या गलती है इसकी? बॉक्स के साथ किसको अटैच होना चाहिए था? अब किसका अटैच किया हुआ है हमने यहाँ? ये भी नहीं करना। ओके, सो दीज आर द काइंड ऑफ मार्क्स जो पॉलीमराइजेशन में लूज होते हैं, राइट? आई होप आप समझ गए कि मोनोमर से पॉलीमर बनाना, पॉलीमर से वापस मोनोमर, राइट? क्या मिस्टेक्स होती हैं? ये वो क्वेश्चन है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये वो क्वेश्चन है जो ओवर द इयर्स में देखा है बच्चों को आ रहा होता है पॉलीमराइजेशन, जब वो बनाते हैं तो ये की गलतियां और वो मार्क्स चले जाए। ठीक है, ओके, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। ऑलराइट, आगे चलते हैं जी। एसिड बेस सॉल्ट्स पे आ जाते, राइट? बाकी तो ऑर्गेनिक आपको पता है ना, याद करना। अनसैचुरेशन का आता है बार बार कि ब्रोमीन कलराइज होगा या नहीं होगा। बाकी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एडिशन में भी कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, बस वो डबल बॉन्ड निकालना होता है, वापस डालना होता है। तो इसलिए मैंने एडिशन को नहीं लिया। मैं सिर्फ उन चीजों को ले रहा हूं जहां आपके मार्क्स कटते हैं। ओके, अब आ जाए एसिड बेस सॉल्ट्स के ऊपर जी। Copper sulfate are made by the reaction between copper carbonate and dilute sulfuric acid using the following steps. Sulfuric has a concentration of 0.1 mole per powder. Copper to carbonate is added to the dilute sulfuric acid. The mixture is stirred. A reaction occurs. More copper carbonate is added with stirring until the reaction stops. Unreacted copper carbonate is separated from the copper sulfate by filtration. Aqueous copper 2 sulfate is heated until some of the water evaporates. Remaining solution is allowed to cool and crystallize. The crystals are removed and dried. I hope आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सॉल्ट की प्रिपरेशन का एक मेथड लिखा हुआ है। अगर आपको याद हो तो सॉल्ट की प्रिपरेशन के क्या क्या मेथड होते थे? इफ यू कुड रिकॉल सॉल्ट की प्रिपरेशन के मेथड जस्ट क्विकली। रहा नहीं रहा, लेकिन मैं उस पर आ रहा हूँ कि क्वेश्चन में गलतियां क्या होती हैं, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए सॉल्ट की प्रिपरेशन के क्या मेथड होते हैं। आप कहते हैं एक होता है सॉल्युबल के लिए और एक किसके लिए होता है? इनसॉल्युबल के लिए। इनसॉल्युबल के लिए तो एक ही है, एंड दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। सॉल्युबल के लिए दो हैं। एक को हम नॉर्मली बोलते होते हैं एक्सेस मेथड, और एक को बोलते हैं टाइट्रेशन मेथड। टाइट्रेशन ग्रुप 1 सॉल्ट को सिर्फ प्रिपेयर करने के लिए यूज होता है, यानी लिथियम सोडियम पोटेशियम वगैरह होने चाहिए। ठीक है, बाकी सब सॉल्युबल सॉल्ट्स को ये एक्सेस मेथड यूज होता है। ठीक है, एक्सेस मेथड में अब कीपिंग इन माइंड, जरा ये चीज सामने रखते हुए आप बता सकते हैं ये कौन सा मेथड लगा हुआ है यहाँ पे? यस, क्योंकि जो सॉल्ट प्रिपेयर करना था वो था कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट और ग्रुप 1 नहीं है। मेटल ग्रुप 1 तो नहीं है ना, कॉपर, कॉपर एक ट्रांजिशन मेटल है, लिथियम सोडियम पोटेशियम में से। तो इसको एक्सेस मेथड से उसने प्रिपेयर। एक्सेस मेथड क्या होता है कि आपको दो चीजें लेनी होती है। एक तो हमेशा सॉल्ट की प्रिपरेशन में आपको पता है एक चीज हमेशा एक ही होती है, एंड दैट इज एसिड। चाहे सॉल्युबल हो, चाहे इनसॉल्युबल हो, चाहे प्रेसिपिटेशन हो, टाइट्रेशन हो, एक रिएजेंट, एक रिएक्टेंट, एक केमिकल हमेशा एसिड होता है। जैसे वो इसको देख के पता चलता है सल्फेट ऐसा जिसमें कोई ऐसा एसिड जिसमें सल्फेट हो, तो आप कहते हैं जी मुझे पता है व्हाट इज दैट एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो एक तो सल्फ्यूरिक एसिड लेना था। दूसरा एक्सेस मेथड में क्या होता है, इस मेटल का आप ले सकते हैं ऑक्साइड,
इस मेटल का आप ले सकते हैं कार्बोनेट, इस मेटल का आप ले सकते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। इवन अवॉइड किया जाता है बट एट टाइम्स आप उसका हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, बट नॉट प्रेफरेबल। ओके, बट आप इसको छोड़ दें, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। मेटल अलोन भी ले सकते हैं लेकिन यहां नहीं ले सकते क्योंकि कॉपर रिएक्ट नहीं करता ना एसिड के साथ। बट एनीवेज उसका प्रोसेस ये लिखा हुआ कि आप दो चीजें लेते हैं, एक कॉपर का कार्बोनेट और एक सल्फ्यूरिक एसिड, ये दो चीज मिलाने का तरीका क्या होता है कि आप, ये सल्फ्यूरिक एसिड है इस वक्त, ये मेरे चाय के कप में, इमेजिन इसे सल्फ्यूरिक एसिड। तो मिलाने का तरीका क्या है, मैं इसमें कॉपर कार्बोनेट डालूंगा एक्सेस में, ठीक है। एक्सेस का मतलब है पहले तो डालूंगा रिएक्ट करेगा, फिर डालूंगा रिएक्ट करेगा, फिर डालूंगा रिएक्ट करेगा, जब तक वो डिसअपियर होता रहेगा, डालता रहूंगा। जब वो नीचे बैठने लग जाएगा दैट विल स्टॉप। क्यों? बिकॉज आई हैव टू मेक श्योर कि ऑल द कार्बो कार्बोनेट रिएक्ट्स और एक्सेस में आ जाए, क्योंकि अगर सल्फ्यूरिक एसिड को छोड़ दिया वहां तो वो कंटेमिनेट कर देगा सॉल्ट। तो आप कहते हैं कॉपर कार्बोनेट एक्स्ट्रा होकर कंटेमिनेट नहीं करेगा, आप कहते हैं वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो तो सॉलिड है, नीचे नजर आ रहा है, मैं उसको फिल्टर कर लूंगा। सल्फ्यूरिक एसिड एक्स्ट्रा हुआ तो कॉपर सल्फेट के साथ मिक्सअप हो जाएगा, वो भी एक्वस है, वो भी एक्वस है। ये चाय के अंदर जैसे दूध पत्ती मिक्स हो, समझ आ गई? अब इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ो क्या है। पाउडर कॉपर कार्बोनेट एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड स्टर, रिएक्शन occurs, more copper carbonate is added। क्यों कर रहे हैं? ताकि सारा सल्फ्यूरिक एसिड यूज हो जाए। Until reaction stops, unreacted copper carbonate is separated from aqueous copper to sulfate। okay, unreacted को निकाल लिया, वो ना कंटेमिनेट कर देगा ना कॉपर कार्बोनेट जो रिएक्टेंट है। फिर क्या किया? रिमेनिंग सॉल्यूशन अलाउड टू कूल एंड क्रिस्टल। आप कहते हैं वो जो कॉपर सल्फेट बना, जब आपने इनको रिएक्ट कराया तो देखो बच्चों, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, आपने जब इसको रिएक्ट कराया तो बन गया कॉपर सल्फेट प्लस H2O। बट ये जो कॉपर सल्फेट बना है इस बीकर के अंदर, ये सॉलिड तो नहीं, हमें तो क्रिस्टल चाहिए थे, तो फिर हमें इसकी क्रिस्टलाइजेशन करनी पड़ती है। ये जो लास्ट पार्ट लिखा हुआ है, हीट अंटिल द पॉइंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स, तो क्रिस्टलाइजेशन या इवेपोरेशन टू ड्राइनेस इसको बोलते हैं। ठीक है, क्रिस्टल्स आर रिमूव्ड एंड ड्राइड। अब क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, अब आपको समझ आएगा, मैंने क्विकली इसलिए रिवाइज करा दी ताकि आपके जहन में आ जाए। ठीक है, सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, सॉल्ट्स में क्या चाहिए होता है। अब इन क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। few observations in the step one, देखिए जो भी आपके जहन में आता है। स्टेप वन देखिए और उसकी दो ऑब्जर्वेशन लिखिए। स्टेप वन की लिख दी। State any reaction stops, state why the reaction stops in step two। Why the reaction stops in step two, ये step two है बच्चे। गौर से क्वेश्चन पढ़ना है और लिखना है, why reaction stops in step two। बस अपना आंसर लिखते हैं, why reaction stops in step two। फिर आगे जो भी आपको समझ आ रहा है बस आंसर लिखते हैं। अगला पार्ट है, नेम द रेजिड्यू इन स्टेप थ्री। Name the residue in step three। Unreacted copper carbonate is separated from aqueous copper sulfate by filtration। Name the residue in step three। The solution at the end of the step 4 contains maximum amount of copper sulfate that will dissolve at that temperature। State a term used to describe this type of solution। The solution which contains the maximum amount of copper sulfate, what is the name to this type of solution? एक ऐसा solution जिसमें maximum amount of solute dissolve हो जाती है। लिख दिए? लिख दिया बच्चों? अब जरा देखें क्या लिखा है। Here you go। क्या लिखा था जी आपने?
एफर्वेसेंस और कलर चेंज। क्यों आपने एफर्वेसेंस का सोचा? कार्बन डाइऑक्साइड जब कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं, दैट्स अ गुड ऑब्जर्वेशन, कि जब भी कार्बोनेट्स रिएक्ट करते हैं आप कहते हैं जी फिजिंग तो होनी होनी, क्योंकि जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनती है फिजिंग तो होती। दैट्स द ओनली गैस जो बगैर फिजिंग के प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। बाकी तो हाइड्रोजन है ना, रिएक्शन विगरस हो तो फिजिंग होगी, नहीं हो तो वो फ्यूम्स की तरह निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ओनली गैस, चाहे उसको जितने भी प्यार से निकाले वो नहीं निकलती, वो फिजिंग से ही निकलती। ओके दूसरा आपने क्या लिखा था? और दूसरा कलर। कलर आपने किस लिए सोचा? बिकॉज शी नोज कि कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। बट इफ समबडी डज नॉट नो एट दैट पॉइंट, तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट होता है सॉलिड डिसिपेट्स। ये एक ऐसी ऑब्जर्वेशन है जो मोस्टली हो रही है, जब भी आप कोई एक सॉलिड रिएक्ट करा रहे हैं तो वो सॉलिड उसमें डिसॉल्व हो रहा है, तो ये ऑब्जर्वेशन आपने हमेशा लिखनी। ओके नेक्स्ट, आपने दूसरे में क्या लिखा था? व्हाई रिएक्शन स्टॉप्स? यस, ऑल द सल्फ्यूरिक एसिड हैज बीन यूज्ड, यही लिखा है आपने। तीसरे में क्या लिखा था? रेजिड्यू कौन था? कॉपर टू का किसी ने और तो नहीं लिखा था कुछ? कार्बोनेट ही लिखा था, क्योंकि रेजिड्यू किसे कहते हैं? जो फिल्टर होकर ऊपर रह जाता है। तो ये एग्जामिनर ने यहाँ आपको बेसिकली कंफ्यूज करने की कोशिश की। अब देखिएगा बहुत सारे लोगों ने आगे चल के एग्जामिनर रिपोर्ट में हम देखेंगे कॉपर सल्फेट लिख दिया। राइट नेक्स्ट, क्या यूज कर सकते थे हम? आपने क्या लिखा? कॉपर ऑक्साइड एंड, ये सवाल नहीं था? Name the substance other than copper carbonate that can be added to sulfuric acid to produce aqueous copper sulfate. कॉपर सल्फेट बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड में और क्या ऐड कर सकते थे? कॉपर ऑक्साइड, कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, ऊपर जो मैंने लिखे थे ये देखें, ये सारे यूज कर सकते थे। राइट अब देखें, अब देखिए गलती क्या हुई बच्चों से। Many candidates gave the answers that omitted observations. The name of the substances and test of the ones gases gain no credit for the question that asked for the observations. Many candidates who referred to the blue color solution often omitted a reference to the solution. आपको बात समझ आ गई है? उसने कहा जी कि बहुत सारे बच्चों ने ऑब्जर्वेशन का वर्ड ही छोड़ दिया। दे नेवर नोटिस कि ऑब्जर्वेशन लिखनी है। कोई रिएक्शन लिखने लग गया, कोई क्या लिखने लग गया। ऑब्जर्वेशन का मतलब है व्हाट डू यू सी, सिर्फ वो लिखना था जो आप देख रहे हैं। और कलर वाले में भी उसने कहा यू हैव टू, many candidates who refer to the blue color often omitted a reference to the solution. You must refer to the solution, that the solution color turned from colorless to blue, not the metal salt that has been added. Okay, please do correct it. It was essential to refer to the sulfuric acid in answer to this question. The reactants had run out was a common answer that received no credit. अगर आप ये कहें कि रिएक्टेंट खत्म हो गए हैं, that is no credit. आपको स्पेसिफिकली उसमें बताना है कौन खत्म हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड खत्म हो रहा है। समझ आ गई है ना बात? फिर कहता है कॉपर सल्फेट वाज द कॉमन इनकरेक्ट आंसर फ्रॉम दोज हु कंफ्यूज्ड फिल्ट्रेट विद द रेजिड्यू। आप वो कह रहा है रेजिड्यू कॉपर कार्बोनेट लिखा है ना, कहता है बच्चों ने कॉपर सल्फेट लिख दिया। क्यों कॉपर सल्फेट लिख दिया? बिकॉज दे वर थिंकिंग अबाउट द फिल्ट्रेट नॉट द रेजिड्यू। Large number of answer named salts usually copper chloride or copper nitrate rather than required bases. उसने कहा जी बहुत सारे बच्चों ने कॉपर सल्फेट को प्रिपेयर करने के लिए जो नाम दिए वो इंस्टेड ऑफ कॉपर ऑक्साइड के क्या नाम दे दिए? कोई कॉपर का सॉल्ट नाम में दे दिया, कॉपर नाइट्रेट और समथिंग। समझ आ गई बात? सो दिस वाज वेल आंसर्ड। अनसैचुरेटेड वाज सीन ओकेजनली। वो कह रहा है वो जो आखिरी पॉइंट था ना जिसमें व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट जब डाइल्यूट हो जाए किसी सॉल्ट की डिसॉल्व हो जाती है एक सॉल्यूशन में, उसे क्या बुलाते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो कहा उसमें बच्चों ने बार दफा ज्यादातर ने सही जवाब दिया। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। माय पॉइंट हियर वाज कि आपको ऑब्जर्वेशंस को ओमिट नहीं करना, जो ऑब्जर्वेशन है उसको स्पेसिफिकली लिखना है। दूसरा, आपको क्वेश्चन को पूरा अंडरस्टैंड करना है जिसमें आपको
एक्सेस मेथड समझ में होना चाहिए, कहाँ रेजिड्यू जा रहा है, कहाँ ये सारा कुछ जा रहा है। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन है तो इस पर पूछ लीजिए, ये एसिड बेस और सॉल्ट से रिलेटेड। एनी क्वेश्चन? ओके, अब आ जाते हैं एक जो बहुत ही कॉमन और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आयोनिक इक्वेशंस। ठीक है, आयोनिक इक्वेशंस कोई है कॉन्सेप्ट आपको क्या होता है के बीच जो रिएक्शंस होते हैं? और देखो बच्चों, केमिस्ट्री में एक होती है इक्वेशन जो बताती है रिएक्शन कि फलाने ने फलाने से रिएक्ट कर लिया है। ओके, दैट इज द रिएक्शन। ओके, कि फलाने ने फलाने से रिएक्ट कर लिया। अब हर रिएक्शन में बात गौर से सुनिएगा, हर रिएक्शन में 100% रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट नहीं करते। कुछ रिएक्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पार्ट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट में चेंज होते हैं और पार्ट्स अनचेंज्ड रहते हैं। द पार्ट ऑफ द रिएक्टेंट इज अनचेंज्ड। अगर आप उसको ऐड कर दें तो दैट विल बी योर ionic equation. What will be your ionic equation in which you do not mention? दोबारा से सुन लें, ionic equation क्या होती है? What is an ionic equation? In which you have to describe precisely who is reacting with you. Because at times when we write the reactions, some part of the reactions react and the other part of the reactions do not react. They go unchanged. So ionic equation is the equation which precisely tells us what part of the reactant is actually reacting. Let me give you an example. For example, if I usually say that sodium hydroxide reacts with hydrochloric acid to form sodium chloride and water. So what apparently looks like that sodium hydroxide is reacting with hydrochloric acid to form salt and water. But if I write the ionic equation, you would be surprised to see that it's not like that. Hydroxide ion of reacts with hydrogen ion. So actually, not the reaction which is written on the top. So what I'm trying to say, Na and Cl, they were actually not the part of the reaction. They just came to party. Okay? They were not doing anything. उसे पार्टी करने आए, तो हमने उनको निकाल दिया, हमने उनको निकाल दिया बीच में से. That is called ionic equation. कि you have to take all the reactants out जो पार्टी करने आए. Those who are here as a spectator. समझ आई बात या नहीं? वो spectator ions थे. The spectators, you understand the word spectators? तमाशाई जिनको बोलते हैं, they just come watch the match, they don't play, just go back home. So I hope you understand what I'm saying. कि आयनिक इक्वेशन, हर इक्वेशन के अंदर से वो पार्ट जो एक्चुअली रिएक्ट कर रहा है उसे आप आयनिक इक्वेशन कहते हैं. और ये जो आयनिक इक्वेशन मैंने लिखी है, ये किसकी है? ये न्यूट्रलाइजेशन. तो अगर मैं ऊपर आप कह रहे हैं, फिर इसका मतलब है अगर ये एक एसिड था, ये एक एल्कली थी, इन्होंने मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाया है, और आप कह रहे हैं कि आयनिक इक्वेशन ये है, तो आप कहते हैं क्या हर एसिड एल्कली में यही होता है? हम कहते हैं यस. व्हेन यू मिक्स एन एसिड with an alkali, whatever the acid is, whatever the alkali is, in fact, their hydrogen and hydroxide ion react to form water. That is called ionic equation. Now you got it, what is the ionic equation is? हर इक्वेशन में वो पार्ट जो एक्चुअली टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन, जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे हैं, जब आप सिर्फ उनको लिखेंगे तो आएगा. अब ये सिलेबस में कहाँ कहाँ आता है? एक तो मैंने आपके सामने लिखा, उसे कहा राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एसिड न्यूट्रलाइजेस द सॉल्युबल बेस, वो तो मैंने लिख दी.
आप कहते हैं जी, फिर आप ये नहीं सोचना कि कौन सा एसिड, कौन सी एल्कली, व्हाट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट। जैसे ऊपर देखें उसे कंफ्यूज किया, कहता है कंप्लीट द सिंपल इक्वेशन टू शो द डिसोसिएशन ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो जब ये डिसोसिएट होता है तो ये बना देता है CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये तो डिसोसिएशन क्या है ना, कैसे कि अपना आखिरी वाला हाइड्रोजन आयोनाइज कर देते हैं, तो ये उनकी डिसोसिएशन। बट उसने बेसिकली आपके माइंड को डाइवर्ट भी किया ना। अब आप सोचने लगे कि पता नहीं क्या हो गया यानी कि इसना कोई भी एसिड हो, कोई भी एल्कली आने की कोई यही रहेगी। इज इट क्लियर? और कहाँ होती है यानी कोई ना, और याद आता है कहीं किसी एक तो ये न्यूट्रलाइजेशन क्या यानी कि कोई लिखनी होती है ना, इसके अलावा क्या लिखनी? ये देखिए यही है ना, वो उसकी आयनाइजेशन लिखी है मैंने, और नीचे उसका एसिड एल्कली के साथ रिएक्शन लिखी है। इसके अलावा किसी को याद है कि कोई और कहाँ आती है? यस, इलेक्ट्रोलिसिस में भी आती है और सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में भी आती है। तीन जगह है, न्यूट्रलाइजेशन की, इलेक्ट्रोलिसिस की, सॉल्ट्स की प्रिपरेशन की। सॉल्ट की प्रिपरेशन में सिर्फ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, नॉट एनीवन एल्स, और इलेक्ट्रोलिसिस की। और सॉरी एक और भी है, रीडॉक्स की, कि जहां रीडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है ना, वहां भी आधा पार्ट रिएक्ट करता है, आधा नहीं करता। अगर आप दो रिएक्टेंट्स को रिएक्ट कराते हो तो एक रिएक्टेंट अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका एक एटम दे रहा होगा ना, सोडियम दे रहा होगा अगर आप सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हो, पोटासियम दे रहा होगा अगर आप, और उसका दूसरा एक ले रहा होगा। सो यहाँ यहाँ आयनिक इक्वेशन इन्वॉल्व है। ये जो आयनिक इक्वेशन नेक्स्ट है, इसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल